Welcome students. Welcome to the e-learning session of economics. In today's session, we will start with the third chapter of your macroeconomics, that is national income and its related aggregates. Okay. Chapter 2 I have already done for your revision. Okay. I have done it in details. Okay. But it is for revision purpose. Okay. I am starting with, because it was already covered by your previous teacher. So I have done it for revision. Okay. Those who have doubts, you can go back and watch that video. Now, we will start with the third chapter of your macroeconomics, national income and its related aggregates. What are the topics that we will cover in today's session? Concept of national income we will cover today. Then we will talk about what are factor income, what are transfer income. We will discuss the current transfer. Okay, what are the current transfers and what are capital transfers. And then we will compare factor income with the transfer income. These are the areas we will cover or focus on in today's session. Okay. Now, before I move on to the topic for today, in the previous chapter, that is chapter 2, we have covered few basic definitions which were very, very important. Like we covered what are final goods, what are capital goods, what are intermediate goods, producer goods, consumer goods, all those things we have done. Then we talked about the various factors. Okay, various factors of production that are used in the production process, who owns them. Okay, we talked about the various sectors like household sector, producing sector, that is farms, government sector, and then rest of the world sector, that is the foreign sector. And we also talked about circular flow of income. We talked about stock and flow concept. These are the areas we covered in the second chapter of your syllabus. Okay. In continuation with those topics that we covered in the previous chapter, today's chapter is connected. Okay. In fact, all the 4 chapters of national income are connected, interlinked. You will be needing the knowledge of previous chapters in this chapter also. Okay. So let's begin with national income concept. नेशनल इनकम पढ़ाने के पहले आप लोग याद करिए कि जब फाइनल गुड्स के बारे में मैं बता रही थी आपको, आई हैव टोल्ड यू दैट फाइनल गुड्स की जो टोटल वैल्यू होती है, फाइनल गुड्स मतलब जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर चुके हैं, है ना, जो रेडी फॉर यूज है. नाउ दोस फाइनल गुड्स, उनकी अगर आप सम टोटल ले लो वैल्यूज की, उनको हम लोग नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में यूज करते हैं. ठीक है. तो नेशनल इनकम मतलब फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है, जो सम टोटल होता है, उनको हम लोग कैलकुलेशन में नेशनल इनकम के यूज करते हैं. नाउ लेट्स बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. एग्रीगेट और सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम और इनकम अर्न्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय द नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर और अकाउंटिंग पीरियड. मतलब क्या है कि अगर एक अकाउंटिंग पीरियड में या एक अकाउंटिंग ईयर में नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री, नॉर्मल रेसिडेंस विल डिस्कस सेपरेटली. नॉर्मल रेसिडेंस जो है एक कंट्री के, वो क्या फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं. ठीक है. फैक्टर इनकम मतलब दैट ऑल्सो वी विल कवर. सो एग्रीगेट, अगर आप उन सारे फैक्टर इनकम का ले लो, सारे फैक्टर इनकम का अगर आप सम टोटल कर लो, समेशन कर लो, एग्रीगेट ले लो, तो वो क्या है, दैट इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. बट यू आर फोकसिंग ओनली ऑन वन अकाउंटिंग ईयर. एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है एक कंट्री के जो नॉर्मल रेसिडेंट्स ओन करते हैं, वहां के नॉर्मल रेसिडेंट्स. ठीक है. तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं एक नॉर्मल रेसिडेंट के पास एक कंट्री में, ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर में वो जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं उनका सम टोटल. ठीक है. व्हाट इज इट? इट इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. सो व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम मतलब है जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं एक कंट्री में, उनके जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से एक अकाउंटिंग ईयर में वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं, उनका सम टोटल, उनका एग्रीगेट इज नेशनल इनकम. ठीक है. सो एग्रीगेट और सम टोटल ऑफ इनकम अर्न्ड बाय द अर्न्ड ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय द नॉर्मल रेसिडेंस. मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है, दे आर द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है.
तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो लोग क्या करते हैं, वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो सर्विसेज है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड करते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर कौन हो गया, जो प्रोडक्शन करता है, जैसे फर्म्स हो गई। तो जो ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले में उनको हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे क्या क्या फैक्टर इनकम मिल रही है, उसी का अगर हम सम टोटल ले ले, एग्रीगेट ले ले, सारे नॉर्मल रेसिडेंट्स के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे सारी फैक्टर इनकम को अगर आप सम टोटल कर दो एक अकाउंटिंग ईयर में, वो क्या है, नेशनल इनकम है। ठीक है, इट इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, वेरी सिंपल। एक कंट्री में जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं, उनके जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो जितनी भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बदले में उनको जो फैक्टर इनकम अर्न हो रही है उसका सम टोटल अगर आप ले लें एक अकाउंटिंग पीरियड में, एक अकाउंटिंग ईयर में, उसी को नेशनल इनकम कहा जाता है। ठीक है, तो दो चीजों पे फोकस हो रहा है, बार बार देखिए, नॉर्मल रेसिडेंस पे और फैक्टर इनकम पे, नॉर्मल रेसिडेंस पे और फैक्टर इनकम पे, इन दो चीजों पे, दो पॉइंट पे ही फोकस हुआ है नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट पे। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल रेसिडेंस देखते हैं क्या होते हैं। अच्छा, नॉर्मल रेसिडेंस को मैंने वहां पे बहुत ब्रीफली आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे बहुत फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास दूसरे टॉपिक्स हैं और इस पे हम लोग नेक्स्ट सेशन पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ब्रीफली मैं आपको आइडिया देती हूँ हु आर नॉर्मल रेसिडेंस। नॉर्मल रेसिडेंस आर इंडिविजुअल्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस। इंडिविजुअल्स मतलब पर्सन, कोई इंसान है ना, और साथ ही साथ इट ऑल्सो इंक्लूड इंस्टीट्यूशंस, कोई ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स, ऑर्डिनरली मतलब जनरल सेंस में, जो रेगुलर जिस जगह में वो रहते हैं उसको ऑर्डिनरली बोलते हैं। ऑर्डिनरली मतलब डे टू डे बेसिस पे जहाँ रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 365 डेज इन अ ईयर वो वहीं पे रहेंगे, ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ जनरली जो उनका घर है, जनरली जहाँ पे वो रहते हैं। ठीक है, तो एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री, एक कंट्री की बात हो रही है जिस कंट्री में वो ऑर्डिनरली, जनरली, रेगुलरली रहते हैं, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री। उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब उनका जो फोकस है, इकोनॉमिक फोकस है, वो भी उसी कंट्री में है जहां वो रह रहे हैं, जहां पे ऑर्डिनरली रिसाइड कर रहे हैं। कभी कभी ये होता है कि इंसान रहता कहीं पे है और काम कहीं और करता है ना, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट्स किनको बोलते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट्स आर दोज पीपल हु आर नॉट ओनली ऑर्डिनरली लिविंग इन द कंट्री बट ऑल्सो वर्किंग इन दैट कंट्री। उसी कंट्री में उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी लाई कर रहा है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब जहाँ पे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, जहाँ अपनी लिविंग को अर्न करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, इनकम को स्पेंड करते हैं और इनकम को एक्यूमुलेट भी करते हैं, मतलब इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज वो उसी कंट्री में कर रहे हैं जहाँ पे वो ऑर्डिनरली रिसाइड कर रहे हैं। रिसाइड करना मतलब रहना। ओके, सो individual or institutions who are living in a country ordinarily, okay, and also performing economic activities in that country, then that person or individual or institution is said to be the normal resident. ठीक है, तो नॉर्मल रेसिडेंट वो लोग होते हैं एक कंट्री में जो उस कंट्री में रहते भी हैं ऑर्डिनरली और साथ ही साथ वहीं पे उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी लाई करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी वो वहीं परफॉर्म कर रहे हैं, इनकम भी वहीं अर्न कर रहे हैं, वहीं स्पेंड कर रहे हैं, वहीं एक्यूमुलेशन का भी काम हो रहा है उनका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मीन्स इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात हम लोग ने की थी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड मीन्स जो लैंड की सर्विस प्रोवाइड करती है, जिस जमीन पे काम हो रहा है उसके बदले में उनको क्या मिलता है, उसको रेंट मिलता है। उसी तरह से जो लेबर है, वर्क फोर्स है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, उनको अपने काम के बदले क्या मिलता है, वेजेस मिलता है। कैपिटल इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल जो पैसा लगा है बिजनेस में, उस पैसे से ही सब काम हो रहा है, तो उसको उसके बदले में क्या मिल रहा है, इट इज अर्निंग इंटरेस्ट। And at the same time, entrepreneur means the businessman, the person whose brain, whose expertise, whose experience, whose time, okay, सब चीज वो इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस में, उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है।
आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ओन करता है, होल्ड करता है इनको। इनके ओनर जो होता है हाउस होल्ड सेक्टर होता है। हाउस होल्ड सेक्टर इज द प्रोवाइडर और द ओनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज वो किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, यानी फर्म्स को। किस चीज में? प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करने के लिए। तो ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोडक्शन फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसके बदले में इनको जो इनकम मिलती है उसी को फैक्टर इनकम बोला जाता है। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या हो गई? नेशनल इनकम मतलब जो नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं उसका सम टोटल। ठीक है, जो नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं उस सारे फैक्टर इनकम की सम टोटल, सारे नॉर्मल रेसिडेंट्स की सारे फैक्टर इनकम की सम टोटल इन वन अकाउंटिंग ईयर और पीरियड। ठीक है, तो आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर समझ में आ गया कि नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सारे फैक्टर सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और उनको ओन करने वाला कौन है? नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, और नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन है? वो लोग जो एक कंट्री में ऑर्डिनरली रहते भी हैं और साथ ही साथ वहां पे ही उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी लाई करता है। ठीक है, so this is the concept of national income. Next we'll move on to the second topic, that is what are factor income. फैक्टर इनकम मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी अभी कि फैक्टर इनकम वो होता है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अर्न करते हैं। ठीक है, नाउ दीज आर द प्राइमरी इनपुट्स व्हिच आर नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. These are the 4 factors of production which are used in the production of goods and services. These are known as primary inputs. Primary मतलब सबसे basic requirement. Factor incomes of normal residents only are included in the calculation of national income. ठीक है, सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट्स की जो फैक्टर इनकम है, हम लोग ने डेफिनेशन में देखा था कि नॉर्मल रेसिडेंट्स पे फोकस किया गया था। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट्स ओनली, उनके फैक्टर इनकम को ही नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में लिया जाता है। बाकी लोगों की जो फैक्टर इनकम है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो फैक्टर इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट्स की फैक्टर इनकम है सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में वही आती है। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द थर्ड टॉपिक, दैट इज ट्रांसफर इनकम. व्हाट आर ट्रांसफर इनकम? ठीक है, फैक्टर इनकम हम लोग ने डिटेल में जान लिया। नाउ ट्रांसफर इनकम means the income received by any person without rendering any productive services in return. फ्री में किसी को अगर कुछ मिले, है ना, without performing anything in return, without giving anything in return, that is transfer income. Transfer income के लिए इसीलिए हमेशा देखिए इनकम अर्न्ड नहीं लिखा है, इनकम रिसीव्ड लिखा है। रिसीव्ड क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे अर्न नहीं कर रहा। अर्न करना मतलब आप उसको कुछ करके by giving something in return you are gaining it, है ना। आप उसके बदले में किसी को कुछ दे रहे हो या कोई काम करके दे रहे हो जिसके बदले में you are earning, वो आपको हक से मिल रहा है ना, आपके हक से मिल रहा है क्योंकि आपने वो काम किया है इसलिए आपको वो अर्न किया आपने। लेकिन रिसीव्ड मतलब फ्री में मिल रहा है, यहाँ पे कोई काम नहीं किया जा रहा है। ठीक है, इट इज जस्ट अ एक्सचेंज, जस्ट अ जनरल रिसीव, ओके, विदाउट परफॉर्मिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। कोई प्रोडक्शन सर्विसेज कोई परफॉर्म करके नहीं दिया गया है और ऐसे ही फ्री में अगर कोई पैसा मिले उसको ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। इट इज अ यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट। यूनिलैटरल मीन्स वन साइडेड। ठीक है, वन साइडेड क्यों है? सिंपल है कि किसी को पैसा मिल रहा है बट that person is not giving anything in return, is not performing any activity, not doing any productive service. It is not included in the national income as it does not reflect any production of goods and services. मैंने आपको बार बार एक चीज पे फोकस किया कि factor income is the income earned by the factors of production by performing or by providing फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन प्रोसेस में जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसके लिए फैक्टर इनकम अर्न की जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ट्रांसफर इनकम। यहाँ पे इट इज जस्ट अ रिसीट, देयर इज नो
प्रोविजन ऑफ एनी सर्विस बाय द पर्सन, कोई काम नहीं कर रहा है, कुछ भी प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प नहीं हो रहा है, कोई गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट ही है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रहे हैं उनका फैक्टर इनकम का सम टोटल, और वो फैक्टर किसके हैं? नॉर्मल रेसिडेंट्स के। ठीक है, तो नॉर्मल रेसिडेंट्स के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सारी फैक्टर इनकम को सम टोटल किया जाए तो नेशनल इनकम आता है। तो क्या इस डेफिनेशन में ट्रांसफर इनकम इंक्लूड होना चाहिए? नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफर इनकम पहली बात तो कोई फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, गुड्स और सर्विसेज से प्रोडक्शन का कोई नाम नहीं यहाँ पे, है ना, जस्ट वन साइडेड रिसीट है, यूनिलैटरल रिसीट है, जिसमें बदले में कोई प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा रही है, इसीलिए हम लोग इसको किसी भी हाल में नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, इट कैन बी रिसीव्ड आइदर विद इन द टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी और फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब एक इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, पॉलिटिकल फ्रंटियर जिसको बोलते हैं। ठीक है, इस पे भी डिटेल डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं, जैसे नॉर्मल रेसिडेंस को डिस्कस करेंगे। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, है ना, एक कंट्री के जो नेशनल और पॉलिटिकल फ्रंटियर है, इकोनॉमिक टेरिटरी है, जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, तो उस टेरिटरी के अंदर में अगर कोई इनकम रिसीव हो रही है विदाउट परफॉर्मिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज और इट इज रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, देन इट इज नोन एज ट्रांसफर इनकम। ठीक है, ट्रांसफर इनकम मतलब जो एक हाथ से दूसरे हाथ पे ट्रांसफर होके आ रही है, बदले में उसके कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में एडिशन नहीं हो रहा, कोई गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो इसीलिए हम इसको ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। और ऐसी ट्रांसफर इनकम चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में मिले या बाहर से मिले, अब्रॉड मतलब outside the domestic territory, if it is received within the territory or if it is received outside the domestic territory, it does not matter because it is not included in the calculation of national income। क्यों? क्योंकि ये वन साइडेड यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई भी तरह का प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हो रहा है बदले में, इसीलिए इसको नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता। अब एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, देखिए आप लोग, ट्रांसफर इनकम के सबसे पहला बेसिक एग्जांपल है पेंशन, है ना, ओल्ड एज पेंशन, जो लोग किसी सर्विस से रिटायर हो गए हैं, ठीक है, दे हैव परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड फॉर दैट दे हैव रिसीव्ड सैलरी, जो उन्होंने प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड की थी अपने सर्विस के दौरान, उसके लिए तो उनको सैलरी मिल चुकी थी, तो अब उनको जो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिल रही है उसके बदले में क्या वो कोई प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं कर रहे, so this is a transfer income। अगर किसी बच्चे को स्कॉलरशिप मिले, है ना, स्कॉलरशिप आपने सुना होगा, स्कॉलरशिप इज अनदर एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर इनकम बिकॉज द स्टूडेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग इन रिटर्न फॉर दैट, है ना, उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उसके बदले में उसको अच्छे मार्क्स मिल गए थे, अब उसके बदले में अगर उसको कोई तरह का स्कॉलरशिप बेनिफिट मिल रही है बट ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग इन रिटर्न फॉर दैट स्कॉलरशिप, सो इट इज अ ट्रांसफर इनकम। उसी तरह से अनएम्प्लॉयड लोग जो होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं ना, जो बेरोजगारी भत्ता जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, है ना, जो लोग बेरोजगार है, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड लोगों को अगर कोई अलाउंस देती है गवर्नमेंट, है ना, कि अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको आपकी रेगुलर इनकम नहीं है और इसलिए आपको कुछ सपोर्ट दिया जा रहा है, दैट इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ऑफ ट्रांसफर इनकम, क्योंकि बदले में वो पर्सन कुछ कर नहीं रहा, प्रोडक्टिव सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा है ना, ही इज नॉट एडिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ही इज नॉट सपोर्टिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो इसीलिए वो भी एक तरह का ट्रांसफर इनकम हो जाता है। गवर्नमेंट को क्या मिलता है ट्रांसफर इनकम के रूप में? टैक्सेस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट। क्यों? क्योंकि टैक्स के बदले में जो हम लोग टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट उसके बदले में डायरेक्टली क्या कुछ करती है हमारे लिए? नहीं। हाँ, गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह कर रही है वो तो गवर्नमेंट का काम है ना, वो तो जनरली करती है, लेकिन हम ये टैक्स दे रहे हैं, इसी के बदले में कुछ डायरेक्टली हमको कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। सो टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट की जो रिसीट है टैक्स के रूप में ये ट्रांसफर इनकम है। अच्छा, गवर्नमेंट अगर कोई तरह का सब्सिडी देती है, सब्सिडी मतलब किसी सेक्टर
अपग्रेड करने के लिए या किसी पर्टिकुलर फील्ड को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट अगर कुछ सब्सिडी देती है, सपोर्ट देती है, दैट इज अ ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। पेमेंट है कि गवर्नमेंट दे रही है, बदले में वो पर्सन कुछ नहीं कर रहा है ना, जिसको सब्सिडी मिल रही है दैट पर्सन इज नॉट डूइंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न, सो इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट। कौन कर रहा है ये ट्रांसफर पेमेंट? ये गवर्नमेंट कर रही है। टैक्स जो है वो गवर्नमेंट की ट्रांसफर रिसीट है, ट्रांसफर इनकम है, लेकिन सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट दे रही है, तो वो एक तरह का ट्रांसफर पेमेंट। आई होप एग्जाम्पल्स आर क्लियर टू यू। सो ट्रांसफर इनकम आर दोज इनकम विच आर रिसीव्ड नॉट अर्नड। ये अर्न नहीं किया है, ये हक से नहीं मिल रहा है, ये फ्री में मिल रहा है, without rendering any productive services in return. It is a unilateral concept, one-sided है, और it is not included in the national income of a country. ठीक है? क्यों नहीं इंक्लूडेड है? क्योंकि इसमें कोई गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन का कोई बात नहीं हो रहा है, और ये चाहे इंडिया विद इन द कंट्री मिले, डोमेस्टिक टेरिटरी से हो या बाहर से मिल रहा हो, किसी भी हाल में ये नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं होता। ठीक है, जिसके एग्जांपल्स हम लोग ने डिस्कस किया। अगर गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है तो गवर्नमेंट का ट्रांसफर रिसीट है, गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है वो गवर्नमेंट का ट्रांसफर पेमेंट है। ठीक है, इंडिविजुअल्स के केस में आप देखते हो, आपके आसपास के लोगों में भी आप कई बार देखते होंगे कि कुछ लोगों को पेंशन मिल रही है, तो पेंशन इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर इनकम। उसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अगर किसी को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है तो दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर इनकम। उसी तरह से अगर आपको घर में पॉकेट मनी मिल रही है अपने पेरेंट्स से, तो पॉकेट मनी इज ऑल्सो व्हाट, इट इज अ ट्रांसफर इनकम, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन रिटर्न फॉर दैट। अपने पेरेंट्स के लिए आप उसके बदले में कुछ कर नहीं रहे हो। उसी तरह से जो स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को पढ़ने के लिए, वो भी एक तरह का ट्रांसफर इनकम है। ठीक है, सो वी हैव कवर्ड फैक्टर इनकम, वी हैव डिस्कस्ड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम चार तरीके की होती है हमारी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, और ट्रांसफर इनकम भी मैंने आपको कई सारे एग्जांपल्स दिए हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है इसका एग्जांपल, या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपसे डिस्कस करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, सो यू हैव टू रीड इट केयरफुली कि ट्रांसफर इनकम क्या होती है। ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू द फोर्थ टॉपिक, दैट इज करंट ट्रांसफर वर्सेस कैपिटल ट्रांसफर। हम लोग ने देखा कि फैक्टर इनकम क्या होता है और ट्रांसफर इनकम क्या होता है। ठीक है, तो जो ट्रांसफर इनकम होता है, इट कैन बी बोथ कैपिटल, इट कैन बी करंट ट्रांसफर। ठीक है, तो ये होता क्या है, करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर में क्या डिफरेंस है ना? करंट ट्रांसफर आर द वंस व्हिच आर मेड आउट ऑफ इनकम ऑफ द पेयर। जो पे कर रहा है, जो ट्रांसफर पेमेंट दे रहा है, वो अपनी इनकम से अगर दे रहा है ना, रेगुलर जो उसकी इनकम है, तो उससे अगर पेमेंट कर रहा है ट्रांसफर पेमेंट, तो उसको हम लोग करंट ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसी जगह वो अपने वेल्थ से कर रहा है, इट इज मेड आउट ऑफ वेल्थ ऑफ द पेयर। वेल्थ मतलब जमा किया हुआ जो पैसा है, जो इन्वेस्टेड फंड है, जो उसकी सेविंग्स है, उसमें से अगर वो पैसा दे रहा है, उसमें से अगर वो ट्रांसफर कर रहा है, तो वो कैपिटल ट्रांसफर है। लेकिन जो उसकी रेगुलर इनकम है, जो इनफ्लो ऑफ मनी होती है रेगुलर बेसिस पे, उसमें से अगर वो किसी को दे रहा है ट्रांसफर पेमेंट, देन इट इज अ करंट ट्रांसफर। ठीक है, तो इनकम से अगर हो रहा है तो करंट ट्रांसफर, और वेल्थ से है तो कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है, दीज आर रेगुलर और जनरल इन नेचर। जो करंट ट्रांसफर होता है वो रेगुलर नेचर का होता है। रेगुलर मतलब जो रिकरिंग है, जो आए दिन होता रहता है। ठीक है, जनरल नेचर का है, कोई नथिंग स्पेशल अबाउट इट, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अबाउट इट, तो इट इज रेगुलर पेमेंट जो जनरली होता रहता है। दीज आर इरेगुलर पेमेंट्स, है ना, जो कभी कभार होता है, जो कोई स्पेशल पर्पस के लिए हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे पेमेंट्स जो कभी कभार होते हैं, इरेगुलर है, उनको हम लोग कैपिटल ट्रांसफर बोलते हैं, और जो रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं, जनरल नेचर के हैं, उनको हम लोग करंट ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, दीज आर मेंट फॉर कंजम्पशन पर्पसेस। कंजम्पशन पर्पसेस जो रेगुलर डे टू डे लाइफ में कंजम्पशन प्रोसेस में यूज होता है, उसको हम लोग करंट ट्रांसफर बोलते हैं। करंट ट्रांसफर मतलब वो पेमेंट जो कि रेगुलर बेसिस का है और कंजम्पशन प्रोसेस में यूज होने वाला है। ओके, विच इज मेंट फॉर कंजम्पशन पर्पस। कंजम्पशन के लिए दिया जाने वाला ट्रांसफर पेमेंट, उसको हम लोग करंट ट्रांसफर बोलते हैं। बट दीज आर मेंट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या है कि फर्दर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फर्दर
फॉर्मेशन की प्रोसेस में पैसा लग रहा है। ये जो पैसा है ये कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज हो रहा है, और ये जो पैसा जो ट्रांसफर पेमेंट हो रहा है ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये कैपिटल को बढ़ाने में यूज हो रहा है। ठीक है, मतलब ये एंड यूज की बात हो रही है। कहाँ से आ रहा है वो तो डिस्कस हो गया, ये इनकम से आ रहा है, ये वेल्थ से आ रहा है, लेकिन ये जा कहाँ रहा है, ये कंजम्पशन पर्पस में यूज हो रहा है, और ये जो है ये कहाँ यूज हो रहा है, ये कैपिटल को फॉर्म करने के लिए यूज हो रहा है, फर्दर कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग ने डिस्कस किया था जो जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, गिफ्ट, ये सारी चीजें अब सेग्रीगेट हो गई है करंट और कैपिटल के बीच में। जो ओल्ड एज पेंशन है ना, वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो मैंने आपको बताया था, और उसी तरह से अगर गिफ्ट आपको जो मिलती है वो भी तो ट्रांसफर पेमेंट ही है, ट्रांसफर इनकम है। तो ये जो इस तरह के पेमेंट होते हैं, ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, दीज आर व्हाट, दीज आर करंट ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर मतलब ये रेगुलर है। आप देखिए पेंशन जो है हर महीने मिलती है लोगों को, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हर महीने मिल रहा है ना। गिफ्ट जो है वो भी काफी रेगुलर है, गिफ्ट जो मिलती है वो रेगुलर पेमेंट होती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्रांट मतलब इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए ग्रांट दिया जा रहा है अगर, है ना, ऑब्वियसली इसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, तभी ये ट्रांसफर है, तभी ये ट्रांसफर पेमेंट है, तभी ये ट्रांसफर इनकम है। लेकिन किसी पर्पस के लिए दिया गया है, किस पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि वो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट ग्रांट मिल रही, ग्रांट मतलब जैसे कि गवर्नमेंट को कहीं से पैसा मिलता है किसी एक पर्पस के लिए, कंडीशनल कोई कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट ग्रांट, तो किस पर्पस के लिए ग्रांट मिल रही है, इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए ग्रांट मिल रही है। तो ऐसी ग्रांट जो है, ये ग्रांट तो ट्रांसफर पेमेंट है ही, ट्रांसफर इनकम है ही, लेकिन अगर गवर्नमेंट दे रही है तो वो पेमेंट है, और गवर्नमेंट को मिल रहा है तो वो रिसीट है ना। तो ट्रांसफर इनकम है अगर ये गवर्नमेंट की ग्रांट, तो इसमें इन्वेस्टमेंट ग्रांट जो है वो कैपिटल ट्रांसफर है। क्यों कैपिटल ट्रांसफर है, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन में यूज हो रही है, ये कंजम्पशन पर्पस वाली ग्रांट नहीं है, ये रेगुलर यूज वाली ग्रांट नहीं है, ये कैपिटल फॉर्मेशन में जा रही है, इसीलिए हमने इसको कैपिटल ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, सपोज करिए आपके पास कोई लैंड है या कोई बिल्डिंग है, उसको अगर आपने बेचा, या कोई भी एसेट है ना, कोई भी एसेट को अगर आप बेचते हो, गोल्ड है, किसी चीज को अगर आप बेचो, तो उससे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट पे टैक्स लगना। इफ यू आर सेलिंग एनी एसेट, you are selling a building, you are selling a land, you are selling precious jewelry, कुछ भी आप बेच रहे हो, इसको बेचने से अगर आपको कुछ गेन हो रहा है, कुछ प्रॉफिट हो रहा है, उस गेन पे अगर गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज करेगी तो वो गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगी, वो उसके लिए ट्रांसफर इनकम होगी। लेकिन वो कौन सी ट्रांसफर इनकम होगी, कैपिटल। क्यों, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस, रोज तो कोई एसेट बिकता नहीं है, रोज तो कोई लैंड या एसेट या बिल्डिंग या ज्वेलरी नहीं बेचता, कभी कभार होता है ना। तो ये जो चीज कभी कभार हो रही है, इरेगुलर है, उससे अगर कोई इनकम हो रही है ट्रांसफर इनकम, तो ऐसी ट्रांसफर इनकम को कैपिटल इनकम बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, तो कैपिटल गेन टैक्स इज अ टैक्स ऑन सेल ऑफ एनी एसेट। ओके, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, तो इस पे अगर कोई टैक्स मिल रहा है गवर्नमेंट को तो ये कैपिटल ट्रांसफर है। मैंने ऑलरेडी बोला है कि गवर्नमेंट को जो भी टैक्सेस मिलते हैं सारे ट्रांसफर इनकम है गवर्नमेंट की। ठीक है, सारे टैक्सेस, लेकिन उसमें कैपिटल गेन टैक्स जो है वो कैसा ट्रांसफर है, वो कैपिटल ट्रांसफर है। इनकम टैक्स जो है क्या वो कैपिटल ट्रांसफर है, नहीं। क्यों, क्योंकि वो इनकम से पेमेंट हो रहा है पहली बार, और वो रेगुलर बेसिस पे मिलता है, हर साल मिलता है। लेकिन ये वाला जो कैपिटल गेन टैक्स है, क्या ये गवर्नमेंट को हर साल मिलता है, नहीं, क्योंकि ये कभी कभार होता है, जब कोई एसेट बेचा जाएगा उस पे जो अगर कभी गेन होगा तभी टैक्स मिलेगा। ठीक है, वॉर डैमेजेस, अगर किसी कंट्री में वॉर हो जाता है, उसमें जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो डैमेजेस हुए, उसके लिए अगर कोई पैसा उसको मिलता है ना, तो वो भी इरेगुलर पेमेंट है, वो रोज रोज तो होता नहीं वॉर, कभी कभार कई सालों में, कई सदियों में वॉर होता है। तो अगर ऐसे किसी तरह का पेमेंट मिलता है तो इसको भी हम लोग कैपिटल ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, तो कैपिटल ट्रांसफर आपको कैसे सेग्रीगेट करना है करंट और कैपिटल में, सबसे पहले आपको देखना है कि करंट ट्रांसफर जो हो रहा है वो इनकम से होता है, कैपिटल ट्रांसफर जो हो रहा है वो वेल्थ से होता है। ठीक है,
करंट ट्रांसफर डे बाय डे बेसिस का होता है, रेगुलर होता है ना, कई बार होता रहता है। और कैपिटल ट्रांसफर जो है वो इरेगुलर है, कभी कभार होता है। करंट ट्रांसफर कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज करने के लिए मिलता है, और कैपिटल ट्रांसफर जो है कैपिटल फॉर्मेशन में यूज होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स है ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, गिफ्ट एक्सेट्रा। स्कॉलरशिप भी इसी में आएगा। और इसमें इन्वेस्टमेंट ग्रांट, कैपिटल गेन टैक्स, वॉर डैमेजेस आएगा। अच्छा, इनकम टैक्स होगा तो यहाँ आएगा, क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स हर साल मिलता है। ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स कभी कभार मिलता है। So these are the basic differences between current transfer and capital transfer. Both are transfer payments. बदले में इसके कुछ नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम दोनों ही है, लेकिन ये करंट और कैपिटल के बीच में सेग्रीगेटेड है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, now we will discuss the last topic for today, that is factor income versus transfer income. factor income हम लोग पढ़ लिया कि क्या होती है, और ट्रांसफर इनकम क्या होती है भी जान लिया। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनका एक कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करते हैं। ठीक है, now factor income refers to the income received by factors of production for rendering factor services in the production process. जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके बदले में जो इनकम मिलती है उनको, उसको हम लोग फैक्टर इनकम बोलते हैं। ठीक है, और ट्रांसफर इनकम क्या होती है? इट इज एन इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न, जिसको बोलते हैं फ्री में किसी को कुछ मिल रहा, बिना कुछ दिए, बिना कुछ किए, है ना, बिना कुछ काम किए अगर कुछ मिलता है तो उसको हम लोग ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर इनकम इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। अर्निंग मतलब कमाया गया वो पैसा जो होता है उसको आप इनकम बोलते हो। फैक्टर इनकम जो आप अर्न कर रहे हो, अर्न करना मतलब आपने कमाया है, आपने मेहनत की है उसके लिए, है ना। यहाँ पे क्या है? इट इज अ रिसीट कॉन्सेप्ट। रिसीट कॉन्सेप्ट मतलब आपको मिल रहा है, आपने कमाया नहीं है, आपने इसके लिए कुछ किया नहीं, मेहनत नहीं की है, कुछ दिया नहीं है, आपको फ्री में मिल रहा है, तो ये रिसीट कॉन्सेप्ट। रिसीट मतलब मिलना, फ्री में मिलना। ये क्या है? अर्निंग कॉन्सेप्ट है, कमाया हुआ पैसा। ठीक है, आप इसके लिए मेहनत कर रहे हो, इसके लिए आपने कुछ दिया है बदले में। ठीक है, सो इट इज अर्निंग कॉन्सेप्ट, इट इज अ रिसीट कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा आप लोग। इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये किसको मिलता है? फैक्टर इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को मिलता है ये। ठीक है, और ये किसको मिलता है? इट इज रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। ये नॉर्मल रेसिडेंट्स के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है, ये हाउस होल्ड सेक्टर को और गवर्नमेंट को, किसी को भी मिल सकता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं पेंशन वगैरह हाउस होल्ड को मिलती है ना, स्कॉलरशिप, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये सब किसको मिल रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर में जा रहा है। और गवर्नमेंट को अगर मिल रहा है तो क्या मिल रहा है? गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, गवर्नमेंट को ग्रांट्स वगैरह कहीं से मिल रहा है, तो ये सब गवर्नमेंट का हो गया। नेक्स्ट इज इट इज इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। अब नेशनल और डोमेस्टिक के बारे में कोई कंफ्यूजन अभी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बारे में भी अलग से डिस्कस करना होगा, तभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी आप बस इतना जानिए कि नेशनल इनकम का एक कॉन्सेप्ट होता है और डोमेस्टिक इनकम का एक कॉन्सेप्ट होता है, दोनों अलग है। ठीक है, बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। तो नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो नेशनल इनकम में भी इंक्लूडेड है, डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूडेड है। क्या चीज? फैक्टर इनकम। हम लोग अगर नॉर्मल रेसिडेंट्स की जो फैक्टर इनकम है उनको अगर लेते हैं तो वो नेशनल इनकम में भी आता है, डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ट्रांसफर इनकम की बात करें, इट इज नाइदर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम नॉर इट इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। तो नेशनल में भी नहीं आता ये और डोमेस्टिक में भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? उसका लॉजिक मैंने पहले बताया, क्योंकि इसमें कोई प्रोडक्शन प्रोसेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हो रहा है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज नहीं हो रही, तो इसीलिए ये जो है कॉन्सेप्ट ये नेशनल इनकम में आता ही नहीं है। ठीक है, ये आता है क्योंकि यहाँ पे बदले में प्रोडक्शन प्रोसेस की बात हो रही है, प्रोडक्शन प्रोसेस में सर्विस प्रोवाइड की गई है, इसके बदले में मिला है ना, तो इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट, इसीलिए इनकम में आता है। ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है नहीं, तो इसीलिए ये इनकम में इंक्लूडेड नहीं होता। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हमने देखे, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इसके एग्जाम्पल देखिए, स्कॉलरशिप हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, टैक्स हो गया,
है ना। अब उसमें करंट और कैपिटल ही आपको याद रखना होगा, जो अभी अभी मैंने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी चीजें ट्रांसफर पेमेंट है जो कैपिटल ट्रांसफर है, कौन कौन सा ट्रांसफर पेमेंट है जो करंट ट्रांसफर है, ठीक है। So these are the basic differences between factor income and transfer income. Factor income factors of production earn करते हैं, है ना, और ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है, सर्विसेज रेंडर कर, प्रोडक्शन प्रोसेस में सर्विसेज जो रेंडर किया उसके लिए मिल रहा है, अर्न किया जा रहा है ना। और ये नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड होता है, इसके ये सारे एग्जांपल्स हैं। और ये जो है दिस इज नॉट अर्नड, दिस इज रिसीव्ड, ओके, दिस इज रिसीव्ड विदाउट एनी rendering of services in return. It is a receipt concept. It is received by household sector and government sector. This is neither included in national income nor included in domestic income. And lastly, these are the examples of transfer income. अब ट्रांसफर इनकम को आप अच्छे से याद रखिएगा कि कैपिटल ट्रांसफर अलग होता है, करंट ट्रांसफर अलग होता है, ठीक है। दोनों ही ट्रांसफर इनकम है, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंस के कारण एक कैपिटल बन गया, दूसरा करंट बन गया। So with this we end today's session, okay, and you go through this video. If you have any doubt, you can ask me again, and we will start with the next session, okay, with some more topics from this chapter, okay. Thank you, students.